ابھی نہیں دیا اس نے مجھے. آپ بہن ہے، اس جیسے بندے کو نا ہم ایک عبرت کا نشان بنائیں گے. یہ وہی ہے، اس کی تلاشی لو، اس کے پاس کوئی ویپن نہ ہو. ایک ہیبیچل کرمنل ہے اور یہ پیسے کے لیے سب کچھ کرتا ہے. ویڈیو بنا کر پھر اسے پیسے لیے تھے تصویروں پہ، اور اس کو مطلب ڈراتا دھمکاتا رہا. میکسیمم جو ہے وہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ ناجائز تعلق میں رکھنے کے لیے. جی دو خواتین ہیں میرے ساتھ اس وقت رابطے میں موجود ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، اور میں ان سے بار بار بات بھی کر رہی ہوں اسی حوالے سے، جو ان سے ہم رابطے میں بھی ہیں کیونکہ ٹیلیفونک رابطہ بھی ہمارے پروڈیوسر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ذکاءاللہ جٹ صاحب، انہوں نے ٹیلیفونک رابطہ بھی کیا ان سے. خاتون سے جو گفتگو ہماری ہوئی اور جس طرح سے وہ بلیک میل ہوئی اور شکنجے میں آئی، وہ تمام گفتگو بھی ہمارے پاس موجود ہے. چونکہ آڈیو ریکارڈنگ ہے تو میں چاہوں گی کہ آڈیو ریکارڈنگ نام کو مخفی رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں کہ ذکاءاللہ صاحب کی ان سے بات کیا ہوئی اور وہ کس طرح سے دعائیاں دیتی رہی اور اپنی زندگی، اپنا گھر بچانے کی بھیک مانگتی. آپ بھی سن لیجیے. جی السلام علیکم بھائی. جی بھائی میں سائمہ بات کر رہی ہوں. کیسے آپ؟ شکر اللہ کا. آپ سنائیں. اللہ کا شکر. سوری بھائی آپ کو تنگ کر رہی ہوں. نہیں کوئی بات. وہ بس وہ بھائی اصل میں نے یہ بتانا تھا کہ میری اس سے بات ہوئی ہے لڑکے سے، اور میں نے اس سے بہت مشکلوں سے میں نے آپ کو اسکرین شاٹ بھیجی ہیں. آپ انہیں پڑھے کہ میں اس سے کتنی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ مجھے 2 دن کا ٹائم دے دو، تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھا. بھائی میں نا آج آپ سے پلیز ایک بہن بن کے بات کر رہی ہوں. آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنی خوشیاں دے گا اگر آپ ایک گھر بچا لیں گے. میں آپ یقین کریں، میں کل سب بہت ساری باتیں تھا، میں اپنی بہن کی وجہ سے آپ سے لنک کر پائی کہ دیکھیے ایک عزت ہوتی ہے اور ہم بہت عزت دار گھرانے کے ہیں، لیکن میں تو یہ کہلانے کی بھی قابل نہیں رہی کہ میں کسی اچھے گھر کی لڑکی ہوں. پھر اس کے ساتھ میں کچھ غلط چیزیں بھی ہیں، اور اس نے مجھے صرف اس بات پہ ٹریپ کیا کہ تم میرے ساتھ نہ مطلب میری کہتے ہیں میرے ساتھ نہ قرآن سے عادت کے کہ تم میری ہو. یہ بات میرے گھر والوں کو بالکل نہیں پتا. یہ دبئی جا رہا تھا اور اس نے کہا میں کبھی تمہیں اس بات پہ بلیک میل نہیں کروں گا، اور جب سے میں نے یہ کیا اس نے مجھے اتنا بلیک میل کیا، اتنا بلیک میل کیا بھائی. اس نے میرا ہر طریقے سے استعمال کیا اور اب میں تھک گئی ہوں. کس طرح کا استعمال کیا؟ اس نے ہر طریقے سے مجھے فزیکلی بھی یوز کیا، مجھے ڈرا کے میری تصویریں مجھے بھیج کے نیوڈ کے جو ہے نا، یہ دیکھو اس نے پہلے میری ایک جھوٹی تصویر بنائی، اس کے بعد اس نے کہا یہ میں ہسبینڈ کو بھیج دوں گا. میں اتنی پریشان ہوں. میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ اللہ خیر کرے گا، آپ صحیح جگہ پر آ گئی ہیں. جی کیے. اور اس نے اس سے یہاں تک کہ کہا کہ اگر اب تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو میں تمہارے میاں کو بھی مروا دوں گا. میں یہ بات میری اور آپ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. اس کے پاس کس قسم کی ہیں آپ کی؟ پہلے اس نے مجھ سے کہا مجھے بھیجو، میں نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گی. اس نے مجھے میری کسی اور کے اوپر لگا کے بھیجی کہ میں تمہارے میاں کو یہ بھیج رہا ہوں. اس نے مجھے اتنا بلیک میل کیا. میری چھوٹی سی ہیلپ کرتے ہیں، مجھے تصویر اس میں لگا کے آپ کو بھیجی ہے، مجھے کوئی ایک تصویر دے دیں والی. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ. میں تو ڈر کے مطلب میں نے تو یہ کل سے آپ کے لیے یہ سب کچھ جمع کیا ہے. میں نے بہت بڑی غلطی کر دی. آپ پلیز مجھے اس غلطی سے نکال دیں. میں ایسے گھر کی نہیں ہوں، میں صرف بلیک میل ہو رہی ہوں. آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ خیر کرے گا. آپ دعا کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا سب کچھ. نہیں میری بات سنیں، میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا کروں گی. اللہ آپ کو بہت خوشیاں دے گا. آپ ایک گھر بچا لیں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میرا چھوٹا بیٹا کہتا ہے مما اگر آپ کو کچھ ہو گیا میں مر جاؤں گا. پتہ نہیں میرے سے کیسے یہ غلطی ہو گئی آصف بھائی. اس نے میرے ٹرسٹ کا استعمال کیا اور کچھ بھی نہیں. وہ میرے سے 2 لاکھ روپے لے چکا ہے. 1 لاکھ باقی بھی اس نے آپ سے بینک کے تھرو لیے تھے، کیش لیے تھے؟ نہیں وہ کیش لیتا تھا، میرے گھر آ کے میرے گھر کی بیلیں دیتا تھا. میں بیوقوف تھی، میں بیوقوف بن گئی اور میں اتنی بن گئی کہ میں تو اللہ سے بھی معافی مانگتی ہوں. میں تو اللہ کی گناہ گار ہوں. اس نے پھر مجھے پرسوں کا ٹائم دیا ہے. میری یاد میں ایک ریکویسٹ ہے، پلیز مجھے پرسوں آپ مجھے بتائیں کہاں کا ٹائم ہے؟ ابھی نہیں دیا اس نے مجھے. آپ
बहन है, इस जैसे बंदे को ना हम एक इबरत का निशान बनाएंगे। आप परसों का ऐसे टाइम रखें, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। मैं बस मेरी बात सुने, मैं अपनी माँ घर तक आने के लिए मैं अब इसको अपना रिटर्न नहीं दूंगी, मुझे नहीं देना इसको। आपने सिर्फ इसको परसों मुझे बताना है कि ये मुलाकात कहाँ पे करना चाहता है, हम आपके साथ होंगे, आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, हम इसको वहाँ से पकड़ लेंगे। भाई मुझे एक बात का डर है, ये ना मैंने अभी तक कभी इसके साथ बुरा नहीं किया, मैं इससे सिर्फ डरती हूँ और बहुत डरती हूँ। आप मुझे बताएं, अगर ये इसके बाद बाहर आता है और इसने कुछ भी कर दिया तो इसकी जिम्मेदारी हमारी, ये बाहर आएगा तो कुछ करेगा। ये बहुत खतरनाक है, आपको नहीं पता क्या खतरनाक है? इसने मुझे किस किस तरह ट्रैक किया है। इसने मुझे एक दफा अपनी गन की भी पिक्चर भेजी कि मैं तुम्हें मारूंगा। उस खातून की गुफ्तगू आप लोग खुद भी सुन चुके हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है जो क़यामत उस पर टूटी। किसी को कत्ल कर दिया जाए तो वो एक बार ही दुनिया से चला जाता है, लेकिन ये तो पल पल मरने से भी अबतर है जो उसके साथ सलूक किया जा रहा है। अब हम आगे साइबर क्राइम सेल का रुख करेंगे, क्योंकि सबसे पहला हमारा उसूल और कानून भी हमें यही कहता है कि हम कानून के रखवालों को साथ लें। साइबर क्राइम सेल, चूँकि मोबाइल फ़ोन का, सोशल मीडिया का ये सारा मामला है, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो ज़रूर दादरसी करें, और जो जो प्रोसेस जैसे जैसे होगा साइबर क्राइम का, वो भी हम आपको दिखाएंगे आज प्रोग्राम में कि साइबर क्राइम सेल किस तरह से काम करता है। हमारी भी पूरी कोशिश होगी, हम पर्सनली तौर पर भी अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे जहाँ तक हमसे हो पाया, क्योंकि इस केस को हम कोशिश करेंगे कि ये एक खातून नहीं, दो खातून हैं और मुख्तलिफ हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इन केसेस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके और आप लोगों को हम इसका नतीजा, इसका मंतकी अंजाम भी दिखा सकें। तो एक ब्रेक के बाद हम चलेंगे साइबर क्राइम सेल। नाज़रीन, यहाँ से जो मैंने टीम को भागते हुए देखा, मेरा ख्याल है कि शायद उसको अरेस्ट कर लिया गया है यहाँ पर किसी शख्स को। ये वही है, ये वही है, ये वही है। इसकी तलाशी लो, इसके पास कोई वेपन ना हो। नाज़रीन, इस वक्त ये शख्स पकड़ लिया गया है, इसकी फुजामा तलाशी ली जा रही है। हमारी टीम के लोग भी साथ मौजूद हैं यहाँ पर, और FIA साइबर क्राइम की टीम भी मौजूद है यहाँ पर। बाइक इसका फौरन तौर पर हिरासत में ले लिया गया और शख्स को हिरासत में लेके इस वक्त साइबर क्राइम के लोग अपनी गाड़ी में उसको मुंतकिल कर रहे हैं। आशिष साहब, ये अकेला ही था या इसके साथ कोई और भी था यहाँ पे? अभी तो इसको हमने जो है वो आइडेंटिफाई किया, अकेला ही आया बाइक के ऊपर ही। बाइक को कब्जे में ले लिया गया है और एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है एन उस स्पॉट से जहां पर उसने उस मुतासरा खातून को मिलने के लिए वक्त दिया था। और हमारी साइबर क्राइम की टीम यहाँ मौजूद थी चुके, और आसपास सब लोग मौजूद है सिविल कपड़ों में, और बड़ी ही उसे हिकमत अमली को अपनाते हुए इसको गिरफ्तार किया गया है और अब यहाँ से इसको लेके जाया जाएगा। लेकिन अब एक और शख्स अभी रहता है जिसने दूसरी खातून को मुतासर किया है, और वो इस वक्त अपनी स्पॉट पे खुद भी उससे मिलने के लिए बुलाया और मौजूद है। हम उस जाने भी चलेंगे और उसको भी वहाँ से पकड़ेंगे एक ही बार, ताकि इनको लेके FIA सेल लेके जाया जाए और इनसे बातचीत की जाए। मेरा ख्याल आशा साहब दूसरा जो है विक्टिम खातून वहाँ पहुँच चुकी होगी। वो भी पहुँच चुकी है और सिटी टर्मिनल अब हम जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं कि खातून की इज्जत बिल्कुल उसी तरह हमें अजीज है जैसे हम अपने घर की बेटियों या बहनों की इज्जत करते हैं, जिस तरह मेरी अपनी इज्जत है। इसलिए हम इन ख्वातीन को मंजर आम पर ज्यादा नहीं ला रहे, इनके चेहरे ब्लर कर दिए जाएंगे और अभी रेड के दौरान भी हम उनके चेहरे या उनकी शनाख्त को सामने नहीं लाएंगे ताकि कहीं उनका घर बर्बाद ना हो, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि उनके इस सारे मामले को खुफिया रखा जाए, मख्फी रखा जाए और इन लोगों के करतूत सामने लाए जाए, ख्वातीन की इज्जत और आबरू जो है उसको बचाया जाए। तो इस हिकमत अमली को अपनाते हुए अब हम दूसरी जानिब चाहेंगे, यहाँ पर भी मैंने खातून को फौरी सामने नहीं किया और अब दूसरी स्पॉट पे भी हम कोशिश करेंगे। इस वक्त हम साइबर क्राइम सेल में मौजूद हैं और जैसे कि आप ऑन कैमरा देख चुके हैं कि हम रेड करके उन तमाम मुल्जिमान को पकड़ के यहाँ ला चुके हैं। अब इन्हीं की जुबानें सुनते हैं। साथ हमारे साथ साइबर क्राइम सेल के ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, आशिष साहब हैं, आसिफ साहब मौजूद हैं और वो रेडिंग पार्टी मौजूद है जिस वक्त वो स्पॉट पे हमारे साथ वहाँ पे पहुंचे थे और उनको गिरफ्तार किया था। सबसे पहले मुल्जिमान की जानिब चलते हैं क्योंकि ये दो मुल्जिमान हैं। एक मुल्जिम इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद है जिसका घर गाजी रोड पर लोकेट किया गया था, लेकिन इसको बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया है, और दूसरा वो मुल्जिम जिसका दुबई से पाकिस्तान आना जाना लगा रहता था और ये उस मासूम
औरत को बुरी तरह ब्लैकमेल कर रहा था जो इसके शिकंजे में फंस चुकी थी। इन्हीं से बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम रेडिंग पार्टी से भी बात करेंगे, ऑफिसर से भी बात करेंगे किस तरह ये सारा प्लान आउट हुआ और फिर इन लोगों तक पहुंचे, प्रोसीजर क्या था। जहां पर ये झूठ बोलेंगे जरूर हम आज दूध का दूध और पानी का पानी सामने लाएंगे अपने नाज़रीन के। क्या नाम है भाई? उमर। उमर क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हो? कपड़े की दुकान पे काम करता हूँ। अच्छा, और ये जो मुदैया है इस वक्त जी, जिनको तुम ब्लैकमेल करते हो, जी, किस तरह इनसे कम्युनिकेट किया था, राब्ता कैसे हुआ था, ये किस तरह शिकंजे में आए? फेसबुक के थ्रू। किस तरह? फेसबुक से दोस्ती की रिक्वेस्ट सेंड की थी, उधर से फिर उधर। तुम कहाँ थे तब कब? जिस वक्त ये रिक्वेस्ट भेजी? मैं यहीं पर था, मैं दुबई पर था, वो पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान में थी। एक चीज कान खोल के सुन लेना, हमें कुछ भी गलत बताने से या गलाने से पहले ये सोच लेना कि 1 महीने की मेहनत है साइबर क्राइम सेल की और हमारी तुम तक पहुंचने में। तुम्हारा सारा चट्टा कट्टा हमारे पास मौजूद है, इसलिए जो भी बात है उसको सही बताना। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या किया? फिर उसके बाद दोस्ती चलती रही, फिर कितना अरसा चली? तकरीबन 2 से 2.5 साल। अच्छा, फिर मैं तुमसे पूछती हूँ ये सारी बातों। आखिर तक इसने इन्वेस्टिगेशन में वैसे क्या चीज उगली है अभी तक? क्योंकि हमारे पास जो चीज सामने आई वो खातून ने बताया कि फेसबुक से उस तक पहुंचा, इसने क्या बताया कि फेसबुक तक उस तक पहुंचा कैसे? कोई रैंडमली इसने रिक्वेस्ट भेजी थी या किसी तरीके से उसे जानता था? असल में ये जो इसने कदम उठाया है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक हैबिचुअल क्रिमिनल है और ये पैसे के लिए सब कुछ करता है। खवातीन से दोस्ती करता है, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करता है। क्या ये वीडियोस फरोख्त करता है? वीडियोस फरोख्त नहीं करता है, ये उन वीडियोस से उनको ब्लैकमेल करता है। जो मुतासरा खवातीन होती हैं अच्छा, उनको ब्लैकमेल करता है, फिर उनसे पैसों की डिमांड करता है। सोर्स ऑफ इनकम बनाया है। जी, इसने सोर्स ऑफ इनकम बनाया और अब तक ये लाखों रुपए जो है उस खातून से ले चुका है। ठीक ठीक, हम क्योंकि आपने ये बताया सोर्स ऑफ इनकम, तो हम इसी से भी जरूर बात करते हैं कि ये इतना घिनौना कदम उठा रहा था, इस तरह से कमाई का जरिया इसने शायद ये दुबई से इसीलिए वापस आया था, ये वहां से सीख के आया था ये सब। ये क्या स्टूडियो बना रखा था इसने, क्या मामला था? हाँ भाई, वीडियो बनाकर फिर उससे पैसे लिए थे उस पे कि मुझे चाहिए थे पैसे, उसकी उस बेस पे फिर मैंने उससे पैसे लिए थे। उसके बाद फिर कितने बार लिए? 1 से 2 बार लिए थे। सिर्फ 1 से 2 बार? जी, उसके बाद फिर दोबारा फिर इसी तरह चलता रहा, मतलब ब्लैक फिर तस्वीरों पे और उसको मतलब डराता धमकाता रहा, बस इसके अलावा और कुछ भी क्यों डराते थे? सिर्फ पैसों की गरज से? नहीं। जी बिल्कुल। क्या कहते थे उसे? कि मुझे पैसे चाहिए, पैसे दे, नहीं तो क्या करोगे? नहीं तो मैं तुम्हारे घर खराब कर दूंगा। घर खराब कर? जी। डीसी लाहौर से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? सिस्टर की शादी हुई है पीए से, डीसी साहब। पीए से शादी हुई? जी। क्या धमकियां लगाते थे? कि डीसी जो है वो एक ही समझ लो मैं ही हूँ, ठीक है। और उसके बाद मेरा दोस्त है, उसने मर्डर्स किए हुए 7 से 8, वो जस्ट उसको डराने के लिए कहता था मैं वैसे। तो क्या करोगे? दोस्त ने मर्डर किए हुए, तो दोस्त है वो सिर्फ डराने के लिए कहता तुमसे था, बर्बाद तो हो गए? नहीं, बस उसको ये कहता था कि मैं फिर तुम्हारे हस्बैंड से मिल लूंगा और ये बात नहीं तो मर्डर की सारी बात क्यों सुनाते थे उसे बार-बार? डराने के लिए बस क्या कहता डराते था थे? कि मेरी बात मान लें, बस और कुछ नहीं। कितने अरसे से चलता आ रहा था ये? ये तकरीबन पिछले 3-4 माह से। 3-4 माह से या 3 साल से ही? रिलेशन 3 साल से था, लेकिन लड़ाई झगड़े ये पैसे पिछले कब से 3-4 मांगने से, शुरू किए थे उससे? तकरीबन 2 साल पहले। 2 साल से ये मामला अंदर ही अंदर चलता जी। हुआ आ रहा था। अब तक कितने पैसे उसे ले चुके हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम जो है वो 1 से 1.5 लाख। सिर्फ इतने ही लिए हैं? जी। मुख्तलिफ जो किस्तें बना के लेते रहे हो वो? नहीं, वो इतने ही लिए थे बस। क्यों आशिक साहब, ये सिर्फ 1-1.5 लाख का मामला है? लाख रुपया तो वो है जो इसने अपने दोस्त के अकाउंट में मंगवाया उसकी सिस्टर से। जो मुतासरा खातून है उसकी बहन ने 1 लाख रुपया इसको इसके दोस्त के अकाउंट में सेंड किए हैं, और बाकी जो कैश है 20-25 हज़ार की इंस्टॉलमेंट वो हर माह लेता था उससे। ठीक, क्यों भाई? ये सारा प्लान पहले से किया हुआ था पैसे खाने का या बाद में रचा है सारा? जी बिल्कुल, पहले से प्लान था कि इसको फंसा के फिर इसे पैसे खाएंगे, उसके बाद जो है अगर नहीं देगी तो फिर इसके साथ इसके घर को बताएंगे सारा करके, इस तरह इसका घर खराब करेंगे, पहले से प्लान था। प्रूफ लेकर फिर उससे पैसे लेने के लिए वही चीजें एक तीर से 2 शिकार करते रहे हैं, पैसे भी लेते रहेंगे। एटीएम मशीन बनाया हुआ था उसे कि जब जरूरत पड़ी उसके पास चले गए, जाके पैसे ले लिए उससे, ब्लैकमेल कर लिया। बच्चे भी हैं ना उसके? जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तुम्हें फिर भी नहीं शर्म आई? उम्र में उससे छोटे, शादीशुदा खातून, घर गृहस्थी उसकी तबाह करने चल पड़े, ब्लैकमेल उसे कर रहे थे। सोचा ये कितना बड़ा जुर्म है? जी। नहीं सोचा था ना? नहीं। वैसे तो बड़े चालाक लग रहे हो। उस वक्त तो बड़े एक्टिव होके आए हो। गलती हो गई जी। उस वक्त तो बड़े हीरो बन के आए थे। जी। अंजाम की फिक्र नहीं थी ना?
नहीं मैम, पता नहीं था। पता नहीं था ना कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जी बिल्कुल। हैं? कानून नाम की कोई चीज भी है हमारे मुल्क में। जी बिल्कुल। साइबर क्राइम से तो वैसे शायद तुम्हें इल्म नहीं होगा कि वो क्या बला है, जी लेकिन अब पता चल जाएगा। जी। नाज़रीन, इसको तो शायद पछतावा नहीं है अपने किए का। आज ये पकड़ा गया तो शायद जुबान इसकी जो है वो उसको ताला लग चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीम पुकार ने आज फिर 2 ख़वातीन का घर उजड़ने से बचा लिया। और जहां हमारी एक काविश थी वहां अनथक मेहनत थी साइबर क्राइम सेल की टीम की, जिन्होंने इसको पाया तकमील तक पहुंचाया और उन ख़वातीन की जिंदगी बचा ली। यहाँ पे एक और भी हमारे साथ मुलज़िम मौजूद है, क्योंकि जो 2 ख़वातीन का ये केस था, तो यहाँ पर जो दूसरा मुलज़िम है उससे बात करते हैं। जुबैर तुम्हारा नाम है? जी। तुम्हारे दूसरे करतूतों का तो हमें पता ही है जी। इससे अलावा क्या काम करते हो? बाइक स्पेयर पार्ट का। कब से कर रहे हो? 4 साल से। मुतासरा खातून तक पहुंचे कैसे? फेसबुक से। वो तो हमें पता है। मैंने उसे रिक्वेस्ट भेजी थी। कहाँ से देखा था उसको? रैंडमली भेज दी थी? रैंडमली भेज दी थी। ऐसे भेज दी थी? जी। नहीं, ये भी जान नहीं ना सोचा कि वो पहचान। खातून है भी सही या जी। किसी और की तस्वीर लगी हुई है? जी। ये नहीं पता था? नहीं पता था। बस ऐसे हवा में तीर चलाया उसने था? मैसेंजर में मुझसे कॉल पे बात की थी, फिर पता लगा था कि ये लड़की है। कैसे बात कर ली? पहली दफा तो कोई ना कर लेता। पहली दफा बात नहीं की, तीसरी दफा बात की। पहले कितना मैसेज पे खर्च बात कर। एक्सेप्ट करने में लगा? 2 दिन लगे थे। अच्छा, और फिर उसके बाद छेड़छाड़ तुमने शुरू की मैसेंजर में? मैसेंजर पे बातें शातें मैंने शुरू की, उसके बाद Direct उसने शुरू की भी ना, ऐसे तो बात कोई जवाब नहीं देता होता। बातें शातें मैंने भी की, उसने भी शुरू कर दी बातें शातें। हम अच्छा। बातें करने लग गए। 1.5 साल हमारा रिलेशनशिप रहा। ठीक है। उसके बाद फिर 1.5 साल देखा नहीं था उसे? 1 साल नहीं देखा था। 1 साल नहीं देखा था। 6 महीने बाद फिर मैंने, आज से 6 महीने पहले मैं उससे मिलने गया उसने था। बुलाया? उसने मुझे कहाँ बुलाया गए? बिजी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में? मुल्तान। BZU? जी बिल्कुल। खादिम ज़करिया जी। यूनिवर्सिटी। ये किया वो क्या? डायरेक्ट करतूत पे हो? ब्लैकमेलिंग की मैंने इधर मुझे उसे। देख के बात करो। तस्वीरें में देख के मैंने उसे ब्लैकमेलिंग की कि अगर तुम्हारी कहीं और हुई तो मैं तुम्हारी कहीं और भी नहीं होने दूंगा। अपने साथ नहीं हुई तो किसी के साथ भी नहीं होने अच्छा, उसे दूंगा। ब्लैकमेल करना शुरू कर जी। दिया। तस्वीरें कहाँ से ली थी? तस्वीरें व्हाट्सएप से ली थी। उसने भी मुझे सेंड की थी। जो उसने मुझे सेंड की थी तो मैं उसी को ब्लैकमेल करता खैर, मैं रहा। तुम्हें खैर यहीं पे दूध का दूध और पानी का पानी कर रही थी। क्यों असद ये तस्वीरें सिर्फ व्हाट्सएप से लेता रहा? जी, इसने जब उसकी मुलाकात हुई इससे तो इसने ब्लैकमेल किया उसको। कहीं पे मिले ये जाके तो वहाँ पे इसने उसकी तस्वीरें बनाई बनाई ज़बरदस्ती। हैं? जी, इसने बनाई हैं। कुछ ऐसी पिक्चर्स भी मिली हैं जो इसने उसको भेजी हैं और उसने इसको भेजी हैं व्हाट्सएप के थ्रू। वो भी काबिल एतराज है? जी, काबिल एतराज़। ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के ज़रिए उसको ब्लैकमेल करता रहा। तफ्तीश में जो आपने इसके साथ की है उसमें क्या ये उगला है कि सिर्फ शादी का मामला था? ये मामला कोई और था? नहीं, शादी का तो मामला ये कह रहा है कि शादी की वजह से, और लड़की भी खातून नहीं एडमिट करती इस बात? जी नहीं, शादी वो पढ़ी लिखी खातून है, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है लड़की, और ये मेरा ख्याल 10 भी नहीं पढ़ा हुआ। तो शादी वादी का सीन नहीं था। इसने उसको ब्लैकमेल किया, उसके साथ दोस्ती की है। अभी तो काफी साइको कर दिया इसने लड़की को। अच्छा। हाँ जी। मेरा ख्याल है कि कहर है शायद एक खुदा का इस पे शायद नाजिल हुआ है कि आज ये गिरफ्त में आ चुका है साइबर क्राइम कि एक पढ़ी लिखी मासूम लड़की जिसको इसने नफ्सियाती मरीजा बना दिया है। तुम्हें कोई शर्म नहीं है? जी हाँ। किस चीज की शर्म है? तुम तो तब तक लगे हुए थे जब तक तुम्हें साइबर क्राइम ने गिरफ्तार नहीं किया। जी, गलती क्यों ब्लैकमेल करते थे उसे? गलती हो गई है मुझसे। गलती तो हो गई ना, ये गुनाह है। जी। उसे ब्लैकमेल करते क्यों थे? उसे हरासमेंट करने के लिए, उसे रिलेशनशिप में रखने के लिए, उसे ब्लैकमेल नाजायज करता ताल्लुक में रखने के लिए? रहा। जी। क्या कहते थे उसे? मैं कहता था तुम मुझसे ताल्लुक ना तोड़ो, ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा। क्या ब्लैकमेल तुम्हारे करोगे? तस्वीरें वगैरह तुम्हारे भाई को दिखाऊंगा। जानते थे उसके भाइयों को? नहीं। तो फिर कैसे वहां तक पहुंचोगे? उसके भाइयों की आईडी मेरे पास है थी। अच्छा, सारा चक्कर फेसबुक से चलाया हुआ था? जी। सारी प्लानिंग कर रखी थी? जी। हैं? जी। कि फेसबुक से उसके फैमिली के अकाउंट्स ले लिए, उसको जी। ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर जी। दिया। हाँ जी। गिड़गिड़ाती तो होगी ना तुम्हारे आगे? जी। क्या कहती थी? कहती थी ऐसा ना करो, ठीक है, मेरी फैमिली में काफ़ी आगे इशू चल रहे हैं, मेरे भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोती भी थी वो? रोती थी, 2-3 दफ़ा रोई थी। तुम्हें वो तरस नहीं आता था? आया था, लेकिन क्या तरस आया था? ये तरस था कि आज भी उसे इसीलिए बुलाया हुआ था? वो तो तुम हमारे हथे चढ़ गए फिर। मैंने नहीं उसे बुलाया, बल्कि उसने मुझे बुलाया था। उसने मुझे कहा था कि फोर्स कौन करता रहा इतना अरसा? फोर्स मैं करता रहा था तुम पहले। करते रहे हो। जी। तो फिर जाहिर है उसने किसी न किसी तरीके तो अब इस जंगल जी। में आना ही था ना जी। तुम्हारे। तुम्हें पता था कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों आएगी। जी बिल्कुल।
یہ تو تمہارا رچایا ہوا کھیل تھا سارا. جی اب کیا ہونا چاہیے؟ اب ہم اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہیں. شرمندہ ہونے سے بات ختم ہو جاتی ہے. آج سے سب ہماری بہنیں ہیں. سب؟ اور ہم سب؟ جی سب بہنیں جی. سب کے ساتھ نہیں یہ کیا جی جن کو نقصان پہنچایا میں ان کے صرف متعلق ایک ہی پوچھ بات رہی ہے, ایک ہی ہے یہ بس. ہوں. متاثرہ خاتون کیا ہے؟ بہن ہے. بہن ہے. توبہ مانگتا ہوں میں, معافی مانگتا ہوں کس آپ سے مانگ رہے ہو؟ توبہ تو اللہ سے کرنی ہے نا, معافی کس سے مانگ رہے ہو؟ زارا کے ساتھ میں نے جو بدسلوکی کی ہے, بلیک میلنگ کی ہے, اسے میں معافی مانگتا ہوں. میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں. آگے سے کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں ایسا کروں گا. میں اس سے معافی مانگتا ہوں دل سے. میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں. بہت زیادہ شرمندہ ہوں. میں آج کے بعد کسی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا. اس سے بھی معافی مانگتا ہوں. میں شرمندہ ہوں بہت زیادہ. ہاں بھائی, کیا ہونا چاہیے تمہارے ساتھ؟ معافی مانگتا ہوں میں ہاتھ جوڑ کے ان سے بھی, آسما سے بھی, اور آپ سے. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. کان پکڑ کے معافی مانگتا ہوں ان سے بھی. اور باجی آج کے بعد میری دوبارہ کبھی غلطی نہیں ہوگی ایسی زندگی میں. دوبارہ اور مطلب ایف آئی اے سائبر کرائم سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ ایک زندگی میں ایک موقع دے کے دوبارہ انشاءاللہ کبھی ان کو کمپلینٹ کا موقع نہیں دوں گا. موقع اسے دیا جاتا ہے جس کی غلطی ہو, گناہ والوں کو نہیں دیا جاتا. اب یہ میں قانون میں فیصلہ اپنی کرنا ہے. غلطی تسلیم کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں. آج سے بھی دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. اس کا دعویٰ کروں گا دوبارہ نہیں ہوگی. دعویٰ یا وعدہ؟ وعدہ کروں گا کہ دوبارہ نہیں ہوگی. لفظوں میں بھی ہیر پھیر ہے تمہارے. کیوں آج تک اب ان کی جو دفعات ہیں وہ کون سی لگیں گی, اور ایف آئی آر کس مد میں کس طرح درج ہوگی؟ جی, ان پہ 21 سیکشن ہمارا جو سیکشل ایکسپلیسٹ امیجز اگر کسی کے کوئی ٹرانسفر کرتا ہے, بناتا ہے, تو وہ نان بیلیبل ہے اور 5 سال کی سزا ہے اس کی. اور اس کے علاوہ 24-20 سیکشنز ہوتے ہیں. تو یہ نان بیلیبل اوفینس ہے. اور انشاءاللہ ان پہ ایف آئی آر تو ہم نے کر دی ہوئی ہے. اب ان کو کورٹ میں لے کے جائیں گے. اب لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ کہ کیا ہوتا ہے. ہماری طرف سے کوئی ریلیف نہیں ہوتا اس طرح کے ملزمان کے لیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی ہم نے اس طرح کا ملزم پکڑا ہے ابھی تک اسپیشل لاء آنے کے بعد, ایک بھی بندے کی ابھی تک بیل نہیں ہوئی, بیل آؤٹ نہیں ہوا ابھی تک. نان بیلیبل اوفینس ہے یہ نان بیلیبل ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نان بیلیبل میں بھی بیل ہو جایا کرتی ہے, لیکن اس اوفینس میں جو ہماری جو جوڈیشری ہے ان کا بھی سٹانس بہت سخت ہے کہ یہ جو کرائمز ہیں یہ سوسائٹی کے فائبر کو کیونکہ ڈیمیج کر رہا ہے. تو بلیک میلنگ اس لیول کی ہوتی ہے کہ لوگ سوئسائڈ تک جو ہیں خواتین چلی جاتی ہیں. تو ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہوتا, نہ ہمارے پاس, نہ ہی ان کو آگے ریلیف ملے گا.